Hello everyone, welcome to my channel. Guys, today we will be starting with illustration number 3 of bonus shares CA Foundation. So here we have illustration number 3. Let's start with the question reading first. Following notes pertain to the balance sheet of Solid Limited as at 31st March 2022. And here we have the authorized capital, issued and subscribed capital, reserve and surplus and secured loan. आई होप अब आप 12th क्लास के बच्चे नहीं हो कि मुझे ये क्लियर करना पड़े ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, सरप्लस क्या है, रिजर्व्स क्या है और सिक्योर्ड लोन क्या है. दिस यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास 12th. Now, on 1st of April 2022, the company has made a final call. ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे made की है final call of 2 each on 90,000 equity shares. यहाँ पे बोनस सैंक्शन करके फाइनल कॉल नहीं मंगवाई है. The company has made final call at the rate of rupees 2 on 90,000 equity shares. 90,000 equity shares issued capital, not authorized. Okay. The call money was received by 20th April. Okay. So इस टाइम पे उन्होंने करी बुक, ठीक है. एंड रिसीव कब हुई मनी? कॉल मनी वॉज रिसीव ऑन दिस डेट. तो ये डेट्स आपको ध्यान से डालनी है. ओके, वाइल पासिंग जर्नल एंट्रीज. Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus at the rate of 1 for every 4 shares. Show necessary entries. आपसे क्या क्या पूछा है? You have to pass the entries in the books of the company and prepare the extract of balance sheet. Okay? यहाँ पे आपको extract भी balance sheet का बनाना है. Immediately after the bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting for increasing the authorized capital. Okay, simple. So first of all, we will pass the journal entries. Okay, अब journal entries हम क्यों पास कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट ही ये होता है, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, फिर वो लेजर्स में जाती है, ट्रायल बैलेंस बनता है, पीएनएल बनता है, देन बैलेंस शीट बनती है. ओके, तो ये नहीं कि आप पहले बैलेंस शीट बनाकर आ जाओगे, क्वेश्चन में भी आप पहले जर्नल एंट्रीज ही पास करोगे, देन यू विल गो फॉर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज रिक्वेस्टेड इन द क्वेश्चन. ओके, तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले हमें क्या बोला है? ऑन 1st of April, ऑन 1st of April, company made final call at the rate of 2 each on 90,000 equity shares. Now tell me, जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमने शेयर कैपिटल का जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसकी एंट्रीज क्या है? सो उसमें हम एंट्रीज पढ़ते थे फॉर फाइनल कॉल. व्हाट वाज द एंट्री? फर्स्टली वी यूज टू बुक द फाइनल कॉल. हाउ? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital account. Okay, then second entry used to be bank account debit to equity share final call account. Okay, and how much it is? 2 into 90,000, so it's 1,80,000. 1.8 lakhs. Okay, now in the question it is written call money was received on 20th April. So यहाँ पे आप जो डेट डालेंगे this will be this. Okay, इसको जर्नल प्रॉपरली बनाना, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स डेट, ठीक है, देन राइट द नरेशन प्रॉपरली. ओके, सो हमने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट लाइन विच इज रिटन इन द क्वेश्चन, उसके रिगार्डिंग 2 entries will going to be passed and we have done that. We are done with it. The company has made final call and the call money was received by this date. So if we will check the narration, it is written final call of 2 per share due as per board resolution dated this. And if we go for the second one, bank to equity share capital 20th April, call money on equity shares received. That's it. Okay, so this was the concept related to final call and I don't think so इसमें कोई problem होनी चाहिए because this concept is already explained so well in the share capital chapter. If you haven't done that तो go for that chapter first. ठीक है, शेयर्स का चैप्टर जो है पहले आप अच्छे से खत्म करो, उसके बाद कम टू बोनस शेयर्स, क्योंकि इंटरलिंकिंग रहती है हमेशा. Thereafter the company decided to capitalize its reserves by way of bonus shares. ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कैपिटलाइज इट्स रिजर्व से आप लोग क्या समझते हो?
ये मेरे पास आज अभी हाइलाइटर अवेलेबल नहीं है। कैपिटलाइज इट्स रिजर्व से आप लोग क्या समझते हो, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये होता है इसमें आप क्या करते हो, शेयर्स इशू करते हो रिजर्व्स में से और कैपिटलाइज करते हो। तो रिजर्व्स को कम करके कैपिटलाइज करना, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं, आप इसके वर्किंग नोट पे आएंगे। सबसे पहले यू विल मेक अ प्रॉपर वर्किंग नोट। हाउ मेनी शेयर्स आर यू हैविंग? You are having 90,000 shares and for every 4 you will get 1. तो I think 22,500 बनता है, या 22,500 shares, ठीक है। 22,500 बोनस शेयर्स आपके रहते हैं, ओके। तो हाउ मेनी बोनस शेयर्स आर देयर? एक के बदले में 4, 1 फॉर एवरी 4। तो टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स विल बी 22,500 एंड वैल्यू, बोनस शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? देखो, इशूड कैपिटल जो है आपकी, उसमें से कॉल्ड अप, पेड अप कितनी है? 8। पेड अप कितनी है? 8। यहाँ पे आपसे फाइनल कॉल 2 रुपये मंगवा ली गई है, तो नाउ इट विल बी 10। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस, ओके, दिस विल बी योर वैल्यू। अब बोनस सैंक्शनिंग हो रही है, ठीक है, और फुल्ली पेड शेयर्स पे हो रही है। पार्टली पेड को फुल्ली पेड कन्वर्ट नहीं किया जा रहा, फुल्ली पेड शेयर्स हैं, आपसे कॉल मंगवा ली गई है, कॉल मंगवा ली गई है, नाउ फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं एंड अब बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं, राइट। तो कैसे इशू होंगे? हमारे पास क्या क्या है? जनरल रिजर्व है, क्या हम इसे यूज कर सकते हैं? यस। रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज कर सकते हैं? नो। ये मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि जो आपका रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है असेट रीवैल्यूएशन के बेस पे, बेसिकली रीवैल्यूएशन रिजर्व वही होता है, ओके। तो ये आप यूटिलाइज नहीं कर सकते फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया जा सकता है? यस, ओके। नेक्स्ट, पीएनएल यूज किया जा सकता है? यस, वी कैन यूज दिस सरप्लस। सिक्योर्ड लोन आपके नेक्स्ट दिए हुए हैं, ओके। तो अब हम हमारी जो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट है वो कितना है? इट्स 225 and how you will going to utilize in any manner, okay. So firstly we will go with security premium account, which is 20,000, which is 20,000. Next we will use general reserve, which is 1,60,000. We cannot use revaluation reserve, so we will be using P&L account for the remaining balance, okay. Minus 20,000 minus 160, so 45 is the balance, okay. So this is how which I calculated. So this is, we have created a provision for bonus to the shareholders account. And what will be the last entry? Bonus to shareholders account to equity share capital account, which is 225,000, okay. Clear? दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे नहीं लगता इसमें आपको ज़्यादा कोई डाउट होना चाहिए, अगर आपने एंट्रीज अच्छे से मेरे साथ कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में समझी हैं। फाइनल कॉल मंगवा के आप पहले इसमें आपने अपनी बुक करनी है कॉल, फिर उसके बाद आपकी जो रिसीविंग अमाउंट की एंट्री है, दोनों की अलग अलग डेट्स दी हुई हैं यहाँ पे। देन बोनस आपकी फुल्ली पेड पे मैंने बताया था कि जो एक दो तरीके से सैंक्शनिंग होती है, एक पार्टली को फुल्ली में कन्वर्ट कर दिया, एक फुल्ली पेड कॉन्सेप्ट रहता है। तो फुल्ली पेड कॉन्सेप्ट में आप सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल सब यूटिलाइज कर सकते हो। और वो कन्वर्जन वाले में हमने पढ़ा था सिर्फ फ्री रिजर्व्स कैन बी यूटिलाइज्ड, आप सीआरआर और एसपीए यूज नहीं कर सकते हो, ओके। रीवैल्यूएशन रिजर्व दोनों सैंक्शनिंग के केस में नहीं कर सकते हो। ये साथ साथ में कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहोगे अगर हर क्वेश्चन में कि हाँ हमने ये पढ़ा था, पहले ये पढ़ा था, तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू रिवाइज एंड रिटेन सच थिंग्स। नेक्स्ट आपकी इसकी 2 एंट्रीज आ जाएंगी कि जो आप प्रोविजन बुक करते हो एंड देन यू कैपिटलाइज द रिजर्व्स, ओके। सो दिस इज हाउ इट विल बी डन। जर्नल एंट्रीज, देयर विल बी ओनली 4 जर्नल एंट्रीज। एक बार हम आईसीआई का चेक कर लेते हैं। येस, दे हैव डन इन द सेम मैनर, और यहाँ पे डेट आपकी 20 ही है। तो ये डेट ध्यान से रखना, जहाँ पे डेट को लेके प्रॉपरली उन्होंने लाइन में मेंशन किया है डेट्स, तो वहाँ पे डेट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि डेट्स वो चेक करेंगे फिर इफ इट्स स्पेसिफिकली रिटन इन द क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, दे आस्क्ड यू द एक्सट्रैक्ट फॉर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो आपने एंट्रीज पोस्ट की हैं उसके इम्पैक्ट को आपने यहाँ पे कंसिडर करना है, ओके। तो इफ आई गो फॉर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट के साथ नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं है।
we are having share capital, we are having reserves and surplus, and we are having secured loan. ओके, बैलेंस शीट जो है वो दिखा रही हूँ एक्सट्रैक्ट। बनाना आपने ऐसे है, मैं आपको यहाँ पर रफली इम्पैक्ट बताऊंगी सबके, ठीक है, कि किसका क्या होगा। तो अब आप इस तरीके से जो इसका फॉर्मेट है बैलेंस शीट का एग्जैक्टली वैसे बनाएंगे। यू विल राइट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। असेट्स में आपका कुछ है नहीं दिखाने वाला। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन नॉन करंट, करंट लाइबिलिटीज में है नहीं। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि किस तरीके से बनाई जाती है। पहले आपका शेयर होल्डर्स फंड आता है, फिर नॉन करंट आती है, फिर करंट लाइबिलिटीज आती हैं, फिर उसके अंडर वाले पार्ट्स आते हैं। देन आपके इक्विटी एंड लाइबिलिटीज मेन हेडिंग रहती है और असेट्स की मेन हेडिंग रहती है टोटल, ठीक है। तो ये तो आपको हल्का सा लर्न ही करना पड़ेगा और इसी तरीके से अगर आप बना के आओगे तभी आपको अच्छे मार्क्स जो है मिलेंगे। फिर इसके पर्टिकुलर नोट नंबर्स रहते हैं, दैट्स इट। नोट्स में आपने ऑथोराइज्ड और इशूड कैपिटल को अलग से दिखाना है, ओके। और हमने वहां पे एक लाइन भी पढ़ी है कि कंपनी का एम क्या है, टू इंक्रीज दी ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो उससे समझ आ जाना चाहिए आपको कि जो भी हमने शेयर कैपिटल इंक्रीज किया है उसका इफेक्ट ऑथोराइज्ड कैपिटल पे तो पड़ना ही है। इशूड में भी दिखाना है उसको, सिर्फ ऑथोराइज्ड कैपिटल इंक्रीज करके नहीं आ जाना, ओके। तो अब मैं आपको इसका इम्पैक्ट समझाऊंगी सिर्फ बैलेंस शीट में, नोट्स टू अकाउंट्स, और ये आपने इसी तरीके से बनाने, दैट्स इट। वर्किंग नोट में इन्होंने बोनस शेयर्स दिखाया जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इंक्रीज बाय सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स, ये लाइन लिखी है इन्होंने, ओके। ये मैं ऑथोराइज्ड कैपिटल वाली आपको बता दूंगी लाइन जो एंड में लिखनी है, ओके। सो अब सबसे पहले आती है हमारी प्रेफरेंस शेयर्स। मुझे एक बार बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई इंपैक्ट पड़ा है? हमने उसको लेके कुछ किया है? नहीं। तो वो सेम रहेगा? हाँ वो सेम रहेगा। कितना रहेगा? 80,000 रहेगा, ठीक है। वैसे ही जो हमारे डिबेंचर्स हैं उस पर हमने कुछ किया है? नहीं किया। उस पर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। सेम रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो जो तो पहले सेम रहेगा उसको तो उठा के सेम सेम लिखना है। अब आ जाओ इक्विटी शेयर्स पे, ठीक है। अब मुझे बताओ इक्विटी शेयर्स पहले कितने थे? 720, ओके, 7,20,000। अब जो हमने एंट्रीज की हैं उस पे आ जाओ। 4 एंट्रीज हैं। शेयर कैपिटल पे हमने फाइनल कॉल मंगवाई है, यस। तो 7,20,000 में 1,80,000 प्लस होंगे, यस, क्योंकि हमने कॉल मंगवाई है। नेक्स्ट हमने बोनस शेयर्स इशू की हैं, उससे हमारी कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा, यस। कितना आएगा? 225,000। बढ़ेगी? यस बढ़ेगी। तो टोटल हो जाएगी 1125,000 आपकी इशूड कैपिटल। आप इसको दिखा देंगे 11,250 इंटू 10 रुपीज, इस तरीके से आपके शेयर्स आएंगे, ठीक है। दीज आर योर शेयर्स एंड दिस इज योर वैल्यू पर शेयर, ओके। ये नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे आप। तो ये आपकी शेयर कैपिटल का टोटल हो जाएगा। अब आ जाओ रिजर्व्स में। अब मुझे बताओ जनरल रिजर्व्स हमने यूटिलाइज कर लिए थे 1,60,000 पूरे, यस। तो ये 0 हो जाएंगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व यूटिलाइज किया था? नहीं। तो ये 35,000 ही रहेगा, यस। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पूरा यूज कर लिया था तो ये हो जाएंगे 0। नेक्स्ट पीएनएल, पीएनएल 205 दिया हुआ है, हमने कितना यूज किया था? यहाँ पे आ जाओ। एसपी पूरा यूज किया, जनरल रिजर्व पूरा यूज किया, इनके 0 बैलेंस हो जाएंगे। पीएनएल हमने सिर्फ 45,000 यूज किया, तो ये कितना हो जाएगा? 205,000 माइनस 45,000 प्लस रीवैल्यूएशन रिजर्व 35,000, 195,000 आपके टोटल रिजर्व्स आ जाएंगे। तो रिजर्व्स का इंपैक्ट जो था वो हमने ले लिया, शेयर कैपिटल जो थी वो हमने ले ली, ये हमारा ले लिया। अब आपका टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ जाएगा यहाँ पे, दैट्स इट। इतना सा एक्सट्रैक्ट बनाना है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे 0 प्लस माइनस किया ये सब नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा देना। इसका बैलेंस इतना था, इतना गया, 0 हो गया, इसको यूज़ नहीं किया, ये 0 हो गया, इसमें से इतना गया तो इतना बच गया। ये इस पे और प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है। इसको आप दिखा देंगे कि हाँ पहले इतना था, फिर फाइनल कॉल मंगवाई प्लस 1,80,000 हो गया, फिर बोनस शेयर्स आपने इशू किए तो वो आपके 225,000 ऐड हो गए, टोटल इतने हो गए। इतने शेयर्स थे, इतनी वैल्यू पर शेयर थी, तो आपकी टोटल शेयर कैपिटल इक्विटी की इतनी, दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल इतना से एक्सट्रैक्ट है। आपको मेन क्या समझना है इसमें ये समझना है कि एंट्रीज का इंपैक्ट क्या होगा। कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग होना है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना है। मैं एक बार फिर से बताऊंगी, एंट्रीज में हमने क्या किया है, अभी के लिए आप बुक को साइड रख दें, सिर्फ इस पे आ जाइए। एंट्रीज में क्या किया है, फाइनल कॉल हमने बुक की है, फाइनल कॉल पे हमने पैसा मंगवाया, दोनों की डेट्स डिफरेंट थी तो डेट्स ध्यान से डालनी है, दैट्स इट। शेयर कैपिटल में जाइए, पहले शेयर कैपिटल के चैप्टर को समझकर आइए। नेक्स्ट बोनस शेयर्स की 2 एंट्रीज हमने स्टार्टिंग में पढ़ी है। इन केस ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, यहाँ पे हमने शेयर्स को फुल्ली पेड कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम यूज हो सकता है, जनरल रिजर्व यूज हो सकता है, बचा हुआ पीएनएल में जाएगा, लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व यूज कभी नहीं होगा बोनस शेयर्स इशू के लिए। प्रोविजन के बाद हमने कैपिटलाइजेशन की एंट्री पास करनी है।
एक्सट्रैक्ट में जाएंगे अगर आप, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि हमने इसको लेके कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, तो सेम अमाउंट विल बी देयर। रिजर्व्स में जो जो आपके बैलेंस थे यहाँ पे यूटिलाइज हो गए, वो चले जाएंगे बचे हुए रीवैल्यूएशन रिजर्व के साथ, सेम प्लस करके आपने यहाँ लिख देना है। इक्विटी में पहले अमाउंट इतना था, दो जगह पे आपने बढ़ाई है कैपिटल, फाइनल कॉल मंगवा के और बोनस शेयर्स इशू करके, तो वो अमाउंट प्लस हो जाएगी और इक्विटी कैपिटल इंक्रीज्ड वाली अमाउंट आपकी बाहर आ जाएगी। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। दिस वॉज योर इलस्ट्रेशन नंबर 3। नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 4। अगर आप फोर्थ इलस्ट्रेशन देखो, ये सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, सिर्फ एक पॉइंट डिफरेंट है, यहाँ पे आपको CRR बैलेंस दिया हुआ है। और क्या आप CRR को यूज कर सकते हो इन केस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स? तो बिल्कुल कर सकते हो। इन केस ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स बिल्कुल कर सकते हो। So this is a balance sheet of Preet Limited on this date. This is the authorized capital. This is the issued and subscribed capital. These are reserves and surplus. Similar in every aspect and in every concept with illustration number 3. Okay. सिर्फ रिजर्व एक एक्स्ट्रा है which is capital redemption reserve. That's it. On this date, the company has made final call to at the rate of 135,000 equity shares. 135 is your issued share capital shares. The call money was received by this date. So here are also the dates are different. Here also the dates are different. So you need to focus on dates. In first entry, while booking the call, you will enter this date, and on receiving the call money, you will enter this date. Thereafter, the company decided to capitalize its reserves by way of bonus shares at the rate of 1 for every 4. 4 के बदले में 1. Show necessary journal entries and extract after bonus issue. तो मुझे नहीं लगता इसको मुझे सॉल्व करवाना चाहिए, तो मैं सिर्फ इसके जर्नल एंट्रीज जो भी इसका आंसर है उसी के बेस पे मैं करवा दूंगी इस क्वेश्चन को। तो 135,000 आपके इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपीज की आप कॉल रिसीव करेंगे, 2,70,000। तो ऑन 1st April you will book the call and then you will receive the money on 20th April. Final call to equity share capital, bank to final call. This will be your entry. 2 entries regarding final call. Thereafter, the company decided to capitalize its reserves for by issuing bonus shares. Okay, एक के बदले में 4, तो 1,35,000 आपके शेयर्स हैं, divide by 4 into 1, obviously it will be 33,750 rupees. And what will be the amount per share? 8 is the paid up, 2 you call the money as on final call, so it will be equal to 8 plus 2 into 8 plus 2 equals to 10 into 33,750. So this will be the value of bonus shares, 337,500. Clear? क्या किया है हमने? 135,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 4 के बदले में एक इशू किया, तो 33,750 आपके शेयर्स हो जाते हैं। एक बार हम इसको कॉन्सेप्ट बोनस शेयर्स का यहाँ पे दिखा देते हैं। 4 के बदले में 1, तो इट विल बी 33,750 शेयर्स। कितने रुपीस के होंगे? 8 पेड अप, 2 आपने कॉल कर लिए, तो 10 रुपीज पर शेयर रहेगा। ठीक है, तो टोटल आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोनस शेयर्स की? इतनी वैल्यू ऑफ बोनस शेयर्स। क्लियर? अब बोनस शेयर्स आप इशू कैसे कर सकते हैं? जनरल रिजर्व पूरा यूज करके, CRR यूज करके, SPA यूज कर लो पूरा, और देखो कितना बैलेंस बचता है। पूरा यूज कर लो, इन एनी मैनर है तो आप पूरा का पूरा यूज कर लेंगे तीनों चीजें, तो आपका 60,000 बैलेंस रह जाता है जो आप PNL में बुक कर देंगे। राइट? तो आपकी एंट्री ऐसे रहेगी, SP, CRR, जनरल रिजर्व, PNL, बोनस टू शेयर होल्डर्स। प्रोविजन क्रिएट करने के बाद बोनस को आप कैपिटलाइज कर देंगे, मतलब कैपिटलाइज कर देंगे जो आपकी कैपिटलाइजेशन एंट्री है रिजर्व्स की, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 337,500 जो है ये आपकी 2 बोनस शेयर से रिलेटेड एंट्रीज पास हो जाएंगी। सिंपल। एक्सट्रैक्ट कैसे बनाओ? जो आपकी ये अमाउंट है इक्विटी शेयर्स, इसमें आप ऐड करोगे 1080,000 में जो जो आपने कैपिटलाइज किया, 2,70,000 किया एक तो, और एक 337,500 किया, तो आपकी अमाउंट आ जाएगी 1687,500, 1687,500। ठीक है, ये आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। ओके, इसमें हमने चेंजेस क्यों नहीं किए? प्रेफरेंस को सेम रखा, ऑथोराइज्ड भी जो था वो रखा, इशूड भी जो था वो रखा, क्योंकि हमने इसको छेड़ा ही नहीं। हमने जिसे छेड़ा है हमने उसे चेंज कर दिया। अब ये अमाउंट कैसे आई है एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ आपको यहीं पे।
जो आपकी इशूड शेयर कैपिटल है, आपने उसमें जो 2 चीज़ें करी हैं, एक तो आपने बोनस शेयर्स कैपिटलाइज किए हैं, सॉरी रिजर्व्स कैपिटलाइजेशन किए बाय इशू ऑफ बोनस शेयर्स, मैं उल्टी लाइन बोलती हूँ। तो आप बेसिकली बोनस शेयर्स और दूसरा जो आपने फाइनल कॉल मंगवाई है, राइट, तो दोनों को आपने प्लस करना है। ये तो पार्टली पेड है ना, उसको फुल्ली पेड किया तो शेयर कैपिटल तो इंक्रीज हुई ना बुलाने पे, तो वो और दूसरा बोनस शेयर्स वाला इम्पैक्ट प्लस कर दोगे, यू विल गेट दिस वैल्यू। रिजर्व्स में क्या करना है, जो जो यूज़ कर ली है आपने बोनस शेयर्स में वो माइनस कर देनी है, दैट्स इट, और आपकी रिजर्व्स की अमाउंट आ जाएगी। मुझे नहीं लगता इसको मैं एक्सप्लेन करूँ इतने अच्छे से जितना मैंने इलस्ट्रेशन 3 में किया है। सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस इसमें एक CRR वाली अमाउंट है जो एक्स्ट्रा दी हुई, जो आपको पता है कि आप यूज़ कर सकते हो फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपने पार्टली पेड को पहले फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं हाईलाइट करवा देती होती हूँ, ये सब पढ़ लिया करो और इसको हर क्वेश्चन में अप्लाई करके चलते रहा करो ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, ओके। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बोनस शेयर्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी अदर इलस्ट्रेशन इन दिस रिगार्ड। अब आपके राइट शेयर्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ मुझे एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं जो आप मुझे अगर कर देंगे, आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी टू मेक मोर वीडियो फॉर यू गाइस। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे जितना सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए, दैट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू। और मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको समझ आ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स या नहीं। इन केस यू नीड एनी गाइडेंस तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।